I go to different places, and people, they say that how they like the sermons from this ministry, and I just really just want to ask them. I said, if you really like these sermons, and if you feel that these sermons are becoming a catalyst to change your life, then come and join our ministry, because this is kind of the indication that God is indicating this, that you come and join this ministry. And if you are in this ministry, thank you very much. So this morning, without further delay, our topic is कि आप अपनी जो है बुरी किस्मत, can you bypass your bad fate and astrology? So अगर आप देखो कि पहला जो फिलोसफर है उस I think is Heraclitus. That philosopher, so this is probably the debate between the determinism and the free will. So I'm not going to go in the debate of determinism and the free will, but the determinism जो है कि आपका जो path है वो determined है, कि आपको path जो determined है जब खुदावंद ने जब आपको पैदा करते हैं, and this is biblical also. So, but the first philosopher Heraclitus, he said that कि we are determined, our path is determined. And then if you see Aristotle and other philosophers जो हैं वो उसी की बात. Not only that, बल्कि scientists, if you see, they ask Einstein the same thing about the determinism, and Einstein said that he, in a couple of interviews, he did say that we are determined. And if you remember Einstein, if you do not know, Einstein was a physicist and he was a scientist as well. Now, if we come to our age, so I think in this age, the very famous scientist, Steve Hawkins, he said the same thing, कि हमारा जो path है, हमारा path जो है वो determined है, और हम उस path को change नहीं कर सकते. But if you see now, when you come fast forward to the Bible, what the Bible says, Ephesians chapter number 2, I think verse 10, it says that before I was even born, God has determined my path. कि खुदावंद ने मेरा जो path है वो मेरे पैदा होने से पहले ही, Ephesians chapter number 2, verse 10, it's saying this. And then we see there's always a debate. So I'm not going to, just like I said, we're not going to go in that debate this morning. But if you see कि जिस दिन आप पैदा हुए हो, if you see, there are a lot of people, they just look the horoscopes, they just go to the astrologist, and if you see that ये जो business है, billions of dollars का business है पूरी दुनिया में, people, they just want to go and ask what's going to happen in the future. Now, the day, the Bible does talk about this, the day you are born, I'm not going to go into the complete, otherwise I do not want you should not consult the astrology, and I'll tell you why in a minute. मगर अगर जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का जो असर है वो आपकी जिंदगियों के ऊपर पूरी उम्र रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू, अगर आप संडे वाले दिन पैदा हुए हो, देन या तो आप बहुत अच्छे हो गए, कंप्लीटली वर्चुअस, या आप विकेड हो गए. बिकॉज ऑन दैट डे गॉड हैज क्रिएटेड लाइट एंड द डार्कनेस. संडे वाले दिन पहला जो दिन है, लाइट और डार्कनेस खुदावंद ने पैदा किया. या तो आप बड़े अच्छे हो, अभी जाके चेक करना शुरू ना कर, बट इस सब पे या तो बड़े अच्छे हो तो या आप विकेड हो. नंबर 1. नंबर 2, इफ यू आर बोर्न ऑन द सेकंड डे, मंडे, so then those people, they are bad tempered people. उन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है जो मंडे को पैदा होने वाले लोग हैं. And this is according to, why is that? It is because the God has divided the waters on that day. And if I just tell you, the people on Tuesday, Wednesday, I do not want you to start. So, but if you want, you can go and consult the Bible. It's written in the Bible. You can check out, But the similar way, according to the stars, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जो सितारा था, अगर वो किस जगह पे था, किस पोजीशन पे था, उसका असर हम पे. क्योंकि why? Because God made heavens and earth and everything is very well organized. If you think things are
जो है वो रैंडम चल रही हैं खुदावंद की सल्तनत में, वो हमारी सल्तनत नहीं है, खुदावंद की सल्तनत है. एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. इफ यू लुक एट द स्टार्स एंड एवरीथिंग, इवन योर लाइफ, it's very well. God created the celestial body, and then that celestial body has an effect on our lives. So the day we were born, कि उस वक्त वो जो stars थे वो किस जगह पे थे, कैसे थे, and you see astrology is true. It's, I mean, if you look at from the Bible also, it's true. मगर खुदावंद said कि this is an abomination. He hated this when people they just go and consult this, and I'll tell you that in a minute also. Now, if you're born under Venus, when you were born, and if you see I'm not going to go into the whole detail, otherwise I think you'll listen that more carefully than the sermon. But if you're born under Venus, so Venus is most of the time, the zodiac sign for the Venus is Taurus. So it is written that person will be wealthy and carnal. What is the reason? Because the fire of lust hangs on that person. So, and he who is born under Mercury, these stars are created by God Himself, and that has an effect on our body, on our lives. That is the zodiac sign. Agar aap, I think everybody knows about it, and you should not read about it. I just keep telling you, God hates it. But if you are born under Mercury, which is Gemini or Virgo, so that person most of the time in his decision is very wise decisions he makes. Now what is the reason? Because Mercury is the sun's scribe, जो किसे कहते हैं मुंशी है सन दा सूरज दा. That's why. So it is those people usually they are. And then I'm just going to tell you one more, and after that I'll stop. So because this is a part, this is more interesting to everyone right now, So a person who is born under the influence of Mars, which is Aries, will be a shedder of blood. That person most of the time, if you see, they turn out to be surgeons, या वो butcher हैं, वो butcher बनते हैं, surgeon बनते हैं, army में हैं those people, and those people they are under the influence when that star, they're born under the influence of Mars, which is an Aries. Now, God does respect the system He made. It is not that God wants you to get out of that system. God do respect that system which God has made. We see over and over, it does not mean that even the miracles, when those miracles, वो कहते हैं कि जब वो समुंदर से गुजरने लगे Israelites, when they were running from Egyptians, तो this is the wind blew. खुदावंद वैसे भी समुद्र को पार कर सकता था, but I'm just fast forwarding because but every miracle you see that God has put some elements in it ताकि वो जो miracle है वो हो सके. So God has created doctors. So when you go to God forbid if you get sick, you go to the doctor. God has created that wisdom. God has created that knowledge. So God wants you to go to it, but the doctors, they will tell you themselves. I think there are some people from the medical line, they will tell you this. The efficacy of the medicine is not 100%. एक ही मर्ज में मुब्तला डिफरेंट किस्म के मरीज जो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ तो उसी दवाई से शफायाब हो जाते हैं और कुछ नहीं होते. Right? So some people they do not, because that's the way God has determined. At the end of the day, the wisdom and the determination comes from the God. It's come from the Lord. So God respects His own system. God does not want कि उसके system को rip करके तो आप उसे side से निकल जाओ. Because God has created us, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि it's a very organized way. God has created everything. But we see this. So पहली दफ़ा हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने जब सितारों का, जिस तरह मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ और फेट की बात कर रहा हूँ, इब्राहिम जो कि आज की हमने पहली तिलावत में देखा कि खुदावंद ने उसकी जो बैड फेट थी, जो उसकी बुरी किस्मत थी, उसे कैसे चेंज किया. इस रिटन आज की जो हमने पहली तिलावत में देखा, वो लिखा है कि ए इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो. नो सॉरी, आई मीन द रॉन्ग वे, sorry. Okay, it's in Genesis, sorry. Okay. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham.
इस वक्त खुदावंद उसे इब्राहिम कह रहा है, इब्राहिम नहीं अभी कह रहा, क्योंकि दैट्स ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स. लुक एट दिस व्हाट ही इज सेइंग. उन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उस दिन खुदावंद ने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं. घर का, और वो इब्राहिम उससे क्या कहने लगा, उससे कहा, बट इब्राहिम सेड, सॉवरेन लॉर्ड, व्हाट कैन यू गिव मी सिंस आई रिमेन चाइल्डलेस एंड द वन हु विल इनहेरिट माय एस्टेट इज एलिएजर ऑफ डमास्कस. इसको उससे अपनी लक का, क्योंकि इब्राहिम था, ही न्यू इट, एंड खुदावंद ने उससे तमाम जो इल्म दे रखा था, एंड ही न्यू हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि उसे कहा कि मैं बेऔलाद जो हूं वो मरूंगा, और जब मैं बेऔलाद मरूंगा तो मेरी जो तमाम जो मुख्तार है वो मेरे नौकर को, एलीसियर को वो मिलेगा. बिकॉज दैट्स व्हाट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर, दैट्स व्हाट वाज रिटन अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द स्टार्स. दैट्स एग्जैक्टली उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ था. But then see what God said. Then the word of Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is from your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, he took him outside and showed him what? The stars. Took him outside, and because he was reading according to the stars, उन सितारों के मुताबिक इब्राहिम बेऔलाद मर रहा था. But then खुदावंद ने उसका बिल्कुल किस्मत चेंज कर दी, उसको इब्राहिम से क्या कर दिया, इब्राहिम बना दिया, क्योंकि उसको बिल्कुल चेंज कर दिया. The man will not be your heir, but a son who is not your flesh will be your heir. He took him outside and said, look up at the sky and count the star, if indeed you can count them. God showed him those stars he was looking at, and he said, the similar way, इन सितारों की मानद जो है मैं तेरी औलाद को, तेरे डिसेंडेंट्स को इन सितारों की मानद कर दूंगा. So, बनाने वाला कौन है किस्मत? खुदावंद. चेंज कौन कर सकता है किस्मत? खुदावंद. इट्स रिटन जो है आज की हमने जो पहली तिलावत में वो देखा, जरमाया चैप्टर नंबर 10 वर्स 1 through 5. लिसन व्हाट ही इज सेइंग. ऐ इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो. खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा मत हो. यू शुड नॉट, दैट्स द रीजन यू शुड नॉट गो और जाके हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं. बिकॉज ही इज सेइंग कि लाइक अदर पीपल डू नॉट बी अफ्रेड द साइंस इन द स्टार्स. यू शुड नॉट. He's talking to you, Israelites. और आसमानी हरासा अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं, मगर तुम ऐसा मत करो. और कौन ऐसा करता है? डू यू सी कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट, और वो करते हैं, वो जाके वो अपनी वो मुहूर्त निकालते हैं. आई होप आई एम जस्ट सेइंग इट करेक्टली. और वो देखते हैं कि उस सितारों पे क्या लिखा है, उस सितारों के मुताबिक क्या होगा, और देन अगर वो अच्छी उनकी है किस्मत के, उनकी बुरी किस्मत है. सो इट इज जस्ट लाइक, एंड ही इज सेइंग दिस, यू डू नॉट डू दैट, डू नॉट एक्ट लाइक दोज पीपल. एंड ही इज जस्ट सेइंग दिस, हु दोज पीपल. इट सीम लाइक वो इंडिया की बात ही कर रहा है. देखो, उन्हें हरासा ना हो, क्योंकि उनके आयन बतालत है, चनाचे कोई. ओके, आई एम जस्ट गोना रीड इन इंग्लिश इफ यू डोंट माइंड. सो डू नॉट लर्न द वेज ऑफ द नेशंस और बी टेरिफाइड बाय द साइंस इन द हेवंस, दो द अदर नेशंस जो है उससे टेरिफाई हैं. कहते हैं, फॉर द प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल्स आर वर्थलेस, दे कट ट्री, वो दरख्तों को काटते हैं, ऑफ द फॉरेस्ट, एंड अ क्राफ्ट्समैन शेप्स इट विद अ चिसल. They adorn it with the silver and gold. They fasten it with the hammer and nails. आपने देखा कभी बुत बने हुए? जो ज्यादा आपने देखा ना, जो बुत बनाने वाले हैं वो इसी तरह करते हैं. वो सितारों का इल्म उनके पास है. और कभी कभी मैंने देखा है कि हमारे मसीह लोग वो भी भागे फिर रहे हैं, वो भी इस बात से परेशान है कि मैं जाके नजूमी से पूछूं कि आगे क्या होने वाला है. That's the abomination to God. Don't do this. It said, those people, the people who are doing this, those people, they do not have trust in the Lord. So that's why those people
दे आर डूइंग इट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप कहोगे कि जो प्रॉफिट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो भी तो फ्यूचर को बता रहा है और एस्ट्रोलॉजर भी फ्यूचर बता रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? यू गाइस कैन आस्क दिस क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो आपको बात बता रहा है फ्यूचर के बारे में, और जो प्रॉफिट आपको बात बता रहा है फ्यूचर के बारे में, उसमें बहुत फर्क है। एस्ट्रोलॉजर जो आपको वो बात बताता है, उस बात को वो सितारों को देख के, सितारों के इल्म को सीख के वो बात आपको बता रहा है, वो सितारों के इल्म से आपको पढ़ के बता रहा है। मगर जो प्रॉफिट आपको बात बता रहा है, वो कहां से बता रहा है? वो खुदावंद से डायरेक्ट रेवलेशन लेके वो बात को बता रहा है। पहली बात तो ये फर्क है। एस्ट्रोलॉजर जो आपको बात बता रहा है, जिसे आप ज्योतिषी भी कहते हो, जो आपको बात बता रहा है, उस बात को चेंज नहीं किया जा सकता। मगर प्रॉफिट जो आपको बता रहा है, इट्स रिटन इन द बाइबल। अगर तो वो आपको बुरी बात बता रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने आपको बुरी बात बता दी, अच्छी बात बता दी, देन यू आर स्टक विद दैट। मगर प्रॉफिट जब आपको बुरी बात बता रहा है, आप अगर रिपेंट करो तो उस बात को चेंज कर सकते हो। मगर आजकल देखा आपने वो सब, वो मैंने वो कभी कभी देखा कि आजकल तो वो फेसबुक पे वो कई पैस्टर्स हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ प्रॉफिट भी ठोका हुआ है। यू नो, कभी आपने देखा है? वो प्रॉफिट भी लिखते हैं अपने नाम के साथ कि जी प्रॉफिट फलाना फलाना। एंड वो आई टेल यू, आई थिंक इट्स सच अ बिग स्कैम। आई टेल यू, आई एम नॉट ओके, स्कैम इस तरह से और स्कैम किस तरह से नहीं है। आई टेल यू अकॉर्डिंग टू द बाइबल, आई जस्ट से इट। अगर तो प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अगर वो अच्छी पेशेंट कोई कर रहा है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल अच्छी पेशेंट कोई चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि खुदावंद अच्छी चीजें दे के वापस नहीं ले रहा बाइबल में। ओके, वो क्या करते हैं प्रॉफिट, वो सब नु जाके अच्छी चीज़ां दसन डे ने। एंड देन अगर वो 10 लोगों को बताएं, तो 10 में से अगर एक के बाद पास वो बात हो जाए, तो फिर सबको बताते फिरते हैं, देखा जी मैं फलाने प्रोफेसी की थी। भाई आपने जो 9 के बारे में प्रोफेसी की वो नहीं हुई पूरी, उसका आपने क्यों नहीं बताया? अकॉर्डिंग टू द बाइबल दे आर फॉल्स प्रॉफिट्स। आई एम नॉट सेइंग इट, बाइबल सेइंग इट, दिस इज नॉट माय टॉपिक, विल कवर इट। They are false prophets first of all, because God, it's written in the Bible कि उनकी बातें मत सुनो, क्योंकि वो गैस कर रहे हैं। और अगर वो बैड पेशेंट कोई करते हैं, प्रॉफिट्स जो हैं, अगर बैड पेशेंट कोई करते हैं, that means so you can repent. We see it in the Bible over and over. I don't want to go in that topic right now. But so if you are a prophet, if you do a good जो है prophecy, that prophecy cannot be changed. अगर मैं कहूँ कि तल्ला साहब आप 10 फीट छाल मारोगे, सो इट मीन कि तल्ला साहब 10 फीट ही छाल मारेंगे, वो तो काट नहीं मारेंगे। मगर अगर मैं आके कोई बैड प्रॉब्लम मैं कहूँ कि आप ऐसा करो, और अगर ऐसा आपने ना किया तो आप उसको चेंज कर सकते हो। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ द थिंग इज दिस, माय ब्रदर एंड सिस्टर, वी डू नॉट हैव टू गो टू एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप किंग के साथ है, डायरेक्ट रिलेशनशिप गॉड के साथ मेरा और आपका है। वो ऐसे है जैसे वो एक वो स्टोरी थी, वो किसी बादशाह ने किसी मुल्क को फतह कर लिया, और जब उसने उस मुल्क को फतह किया तो उस जो मुल्क के रहने वाले थे वो कहने लगे कि मैं इस कैप्टन के साथ अपनी जो है वो बातचीत बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये नया बादशाह है। किसी ने कहा कि मैं मेजर के साथ बनाता हूँ, किसी ने कहा कि मैं इस दरोगे के साथ, किसी ने किसी के साथ। तो एक जो वाइज मैन था, तो वाइज मैन कहने लगा कि मैं जो है वो अपना जो तल्लुक है वो बादशाह के साथ बनाऊंगा, क्यों? कहने लगा कि ये तमाम जो लोग हैं वो चेंज होने वाले हैं, मगर बादशाह जब तक वो जिंदा है, जब तक वो बादशाह है, उसको कोई सुपरसीड नहीं कर सकता उसकी बात को। सो वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। नाउ इफ यू सी कि बाइबल में ओवर एंड ओवर वी सी कि खुदावन जो है वो हम तक रीच कर रहा है, किंग जो है वो हम तक खुद वो रीच कर रहा है। आप देखो कि Psalm 23 verse 6, श्योरली योर गुडनेस एंड लव जो है वो सारी उम्र मेरे साथ साथ रहेगी, राइट? क्योंकि वो कहते हैं कि तेरा लव और तेरी जो गुडनेस है वो मुझे फॉलो करेगी। देन वी सी इट इन रेवलेशन, आज की जो तिलावत थी, चैप्टर नंबर 3, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैं खटखटाता हूं, तेरा किंग जो कि किस्मत का लिखने वाला है, जो कि तेरी फेट बनाने वाला है, वो खुद दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले
तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मैं तेरे पास रहूंगा और मैं तू हर एक चीज पे गाल पाएगा. सो वी डू नॉट हैव टू गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स बिकॉज हमारा जो डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? सितारों से निकल के, जिस तरह इब्राहिम का रिलेशनशिप जो था वो डायरेक्ट किसके साथ था? खुदावंद के साथ. सो हमारा, मेरा और आपका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप. नाउ व्हेन इफ यू सी जीसस, ही वाज इन दिस वर्ल्ड, इवन ज्यूज दे थॉट कि ये कोई प्रॉफिट नहीं, because whenever Jesus would talk like he has authority. He is God himself, because it's written here, Mark में chapter number 1 verse, they went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, because he taught them as not that like he has authority, जैसे कि उसके पास उसे इख्तियार दिया गया है. क्योंकि खुदावंद को बनाया किसने? सब सितारों को. मैंने आपको, आई डोंट नीड टू टेल यू, सबको बनाने वाला, सितारों का और सब चीजों का बनाने वाला कौन है? खुदावंद खुद है. और अगर आपका जो इब्राहिम का देखा हमने, जब स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कहां पे था? खुदावंद के साथ खुद था, और उसने इब्राहिम को इब्राहिम में चेंज कर दिया. इफ यू सी जीसस ऑल हिज लाइफ ही चेंज द बैड फेट. जो लोगों की, जिसे आप कहते हो कि उसने उनकी डायरेक्शन, स्टार्स की डायरेक्शन ही चेंज कर दी. हमने आज की जो तिलावत है उसमें हमने उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था कि दे ब्रॉट टू द फरीसीज द मैन हु हैड बीन ब्लाइंड. एंड आपको याद रहे कि ये जो अंधा है ये पैदाइशी अंधा है. दैट्स हाउ द स्टार्स इन्फ्लुएंस. दैट्स हाउ पैदाइशी अंधे को वो जीसस के पास, उसके पास कोई नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे. मगर क्या हुआ कि जीसस ने उसकी डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर दिया, पैदाइशी अंधे को. नाउ द डे ऑन विच जीसस had made the mud and opened the man's eye was a Sabbath, obviously. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. और अगर आप देखो कि according to the Pharisees, they knew कि उसकी किस्मत को चेंज नहीं किया जा सकता, उसकी बैड किस्मत को, और एस्ट्रोलॉजी पर जो सितारों पे उसके बारे में लिखा है वो पैदाइशी ऐसा है, उससे चेंज नहीं किया जा सकता. वो इतने हैरान हुए, उन्होंने उसके माँ बाप को बुलाया. वो कहने लगा टेढ़ा मुंडा है, वो ऐसे पैदाइशी अन्ना सी ऐ के मैं ठीक हो गया. देन उन्होंने वो अंधे को बुलाया, अंधे को बुला के अंधे से उसे पूछने लगे, तू वही है जो अंधा था, पैदाइशी अंधा था और बैठा हुआ था, तेरी आंखें कैसे? और फिर उसको यू सी उसके ऊपर वो तमस्खर करने लगे उससे. सो द वन थिंग ही सेड इज सो ब्यूटीफुल एंड दैट टच माय हार्ट. ही सेड आई वाज ब्लाइंड बट नाउ आई सी. मैं अंधा था मगर अब मैं देखता हूं. सो दैट्स द फुलफिलमेंट. तो खुदावन ने जब जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने डिसाइपल्स को जीसस के पास भेजा कि तू ही है वो जिसका हम वेट कर रहे थे, कि अभी हमें और किसी का वेट करना है, तो जीसस ने क्या कहा कि जाके बताओ कि क्या करते हैं? अंधे क्या है? देखते हैं, और लंगड़े चलते हैं. कि उनकी जो बैड फेट थी, जो उनकी बुरी किस्मत थी, वो चेंज हो गई. मुझे और आपको, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप, वी कैन गो अक्रॉस, we can bypass those stars, and now we have a direct relationship. The problem when you check your astrology, the problem when you check your horoscope is this. जब आप अपने horoscope को check करते हो ना my brother sister, and that's the reason it's an abomination to God, क्योंकि आप जो हो वो अपने आप को वहां पे stuck कर लेते हो. That's why God hates it. God does not want you to get stuck in the bad faith. जब आप जाके horoscope देखते हो ना, तो इट मीन्स कि आपने अपने आप को वो अच्छा है या बुरा उसमें स्ट्रक कर लिया. इसलिए मैंने वो सारा आपको पढ़ा नहीं था. मैंने देखा कि आपके चेहरे चमकना शुरू हो गए थे जब मैं बात कर रहा था. तो मगर द थिंग इज दिस, डोंट डू दैट, बिकॉज देन यू विल गेट स्टक इन इट. व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट गिव फेथ अ चांस. आपने फेथ को तो चांस ही नहीं दिया. यू हैव टू गिव फेथ अ चांस, because through faith we know God. Now
My brother and sister, it's written in Romans chapter number 8, verse 15 to 16. So you have not received a spirit that makes you fearful. आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो स्पिरिट है वो हमें खौफजदा नहीं बना रही, make you fearful or slaves, और ना ही हमें वो गुलाम बना रही है. Instead, you receive God's Spirit, Holy Spirit, when we adopt you as His own children. Now, what we can call Him, Abba, the Father. जब मेरा जो रिलेशनशिप है वो किंग के साथ कैसा है कि मेरा उसके साथ जो सितारों को बनाने वाला है, उन सितारों का जिनका इन्फ्लुएंस से आप डरते फिर रहे थे सारी दुनिया, अब मेरा रिलेशनशिप किंग के साथ ऐसा है कि मैं उसका, he called me as his child, so मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका चाइल्ड हूँ. सो जब मुझे जाना है, सितारे आपके कुछ कह रहे हैं, कहते नहीं यार मेरे थे आज पता नहीं सितारे गर्दिश विच ने आज तो दिन है ना, कहते हैं ना हम, नो डोंट वरी अबाउट दिस, किसी के सितारे कोई गर्दिश में नहीं, क्योंकि आपका जो सितारों का बनाने वाला है उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप है जैसा कि एक बाप का बेटे के साथ, और जिस तरह एक बेटा अपने बाप से जाके कुछ मांग सकता है, किसी के सारे कुछ गर्दिश में नहीं. डोंट वरी अबाउट दिस. एंड देन इट्स रिटन, प्रे अबाउट इट. If you have no faith, then you call your pastor. Your pastor will pray for it. I tell you, things happen. Okay? So, this is the good news. Go and tell the world, okay, I was blind, but now I see. कि मैं पहले अंधा था, मगर अब देखता हूँ. Like Jeremiah. In Jeremiah he said, do not worry about the installations of the stars. What is the takeaway? So you are not stuck in your bad faith. आप अपनी बुरी किस्मत में फंसे हुए नहीं हो. अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप, मैं, मेरा और आपका खुदावंद के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. और मैं जब खुदावंद से जा मांगता हूँ ना, तो मैं एक बैगर की तरह नहीं मांग रहा. आपने देखा कि दूसरी नेशंस के जो लोग हैं वो बैगर की तरह वो मांग रहे हैं. जब मैं खुदावंद से मांग रहा हूँ तो मैं इस तरह से मांगता हूँ क्योंकि मेरा एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप उसके साथ कैसा है, जिस तरह एक बाप का एक बेटे के साथ होता है ना. मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, डू यू हैव अ रिलेशनशिप विद द किंग? डू यू फील दैट यू हैव अ रिलेशनशिप विद द किंग? डू यू फील that he is your father? Do you believe that he is your father? Do you still believe in that good fate, bad fate? Everything is good. Believe it or not, whether it's written, whether you're going in the good times or the bad times, always be thankful to the Lord, because He has created everything. So, His children. So remember this, my brothers and sisters. So the thing is this: just keep your eyes on the spiritual needs. Most of the time, the problem happens then we get stuck in our physical needs. जब फिजिकल नीड्स के ऊपर हम फंस जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है आसमानी है उसका वो स्पिरिचुअल माइंड है, और जो फ्लैश है, जो जिस्मानी है, उनका जिस्म की ख्वाहिशों के ऊपर ध्यान रहता है. अगर आपका जो जिस्मानी ख्वाहिशों पे, जो आपका स्पिरिचुअल नीड्स के ऊपर ध्यान, सो देन यू जस्ट गोडे छोटे से दुखते रहने दें. That's not a problem. This is just keep your eyes to the Lord. And then everything else is just like, because I have forged a direct relationship, it doesn't mean that physically then I'm just like, everything is good. Everything is good. Everything is love. Because that love, what we have for my Father, that love, that's the good news. I just go and share with other people, and by share, people they see, man, this guy is a faith. He has a faith of God in him. He's just like on this. He's on fire for the Lord. So I want you to, when you just go out, be fire on this. Be fire on for the Lord, because we have just go and tell the good news that we have a relationship with our Father. Are you ready? Amen. God bless you all. Let's pray. Dear loving Heavenly Father, I thank you very much for this word that you have given this day, Father.